This topic is change of trim with change of density. Am I audible, guys? And is the screen visible? A blank screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. There's nothing on the screen, so don't worry. Nothing wrong with the system yet. Okay, बेटा पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. Please try and answer them. What are the factors or what are the circumstances or what are the causes which can lead to change in the hydrostatic draft of the ship? Listen to my question carefully. It's a simple, straightforward question. Think of it and answer. What are the factors or reasons which can lead to change in the hydrostatic draft? Density. Sorry, say again. Displacement again. and water. Ajay? Displacement and density. Okay, you are saying change in displacement of the ship or change in the density of the water or both, right? That's what he is saying. Anybody else in the class who's either in agreement or not in agreement with him? Correct? Correct, sir. Okay, now listen to the second question. Very good, fantastic, absolutely right. What are the reasons which lead to Hello. hello, yes, mic testing 1 2 3 4. Can you hear now? भाई किसी को आवाज आ रही है क्या? नहीं, वो मेरे सबको आ रही है, तेरे को ही नहीं आ रही क्या? आ रही है बात तो आ रही है। आ रही है हरदीप अपना वॉल्यूम तेज कर लो। अबे हरदीप को मेरी आवाज नहीं आएगी तो तुम्हारी कहां से आएगी, अकल के दुश्मनों? या you have a bloody hotline with him through Microsoft, is it? Either he can hear all of us or he'll hear none of us यार. चैट में डाल देते हैं। फोन कर दो। सर रीजॉइन कर लिया सर। ओके वेरी गुड। अब सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ जी। ओके, सो बेसिकली मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि व्हाट आर द reasons, circumstances which lead to change in the hydrostatic draft, and class answered it correctly. They said either change in displacement, increase or decrease, or change in the density of the water. Both could lead to change in the hydrostatic draft. You also agree, beta? Yes, sir. Okay. My second question was, which I was to pose actually to the class, it was not shared. What are the reasons which lead to change in draft at the ends of the ship? तुमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। सोचो सच, अगर ओरल्स में लोग इसने तमीज से क्वेश्चन पूछने लग जाए तो तुम टेस्ट भी हो जाओगे और कुछ काम भी रहे उसमें। सर मेन राइज मीन सिंकेज और टी। ओके वेरी गुड। You are absolutely right, but it can be better worded. Your mean rise, mean sinkage could be change in high draft, correct, beta? Yes, sir. And Yes, change in trim. And change in trim. So you were right, but probably the answer could have been better worded by saying change in hydrostatic draft, and change in hydrostatic draft की हम बात अभी already कर चुके हैं, and other is change in trim. ठीक है? So now when a ship goes from water of one density to another without change in displacement, obviously here the displacement is not changing. So hydrostatic draft would change. You have all agreed with that, right? Yes, sir. And आप इस चीज को अब तक आप जब भी शिप एक डेंसिटी से दूसरे में जाता था, आपसे ड्राफ्ट पूछते थे तो आप क्या करते थे? आप चेंज इन ड्राफ्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी लगा के खत्म कर देते थे, राइज और सिंकेज लगा के खाली। अगर आपके पास पर्टिकुलर्स थे जैसे एमवी इन शिप या शिप के पर्टिकुलर्स हों तो आप क्या करते थे? आप बेसिकली मान लो सी वाटर में थे, अगर आप दूसरी डेंसिटी के पानी में गए तो जो डिस्प्लेसमेंट सी वाटर में थी उसको उस पानी में कन्वर्ट कर लेते थे, हमें ऑलरेडी पता है। और वाइस वर्सा, इफ वी न्यू द डिस्प्लेसमेंट or the displacement or the draft in some water of other density, let us say fresh water, तो हम क्या करते थे?
उस डिस्प्लेसमेंट को इक्विवेलेंट सी वाटर में डिस्प्लेसमेंट निकाल के और फिर उससे हम ड्राफ्ट निकाल लेते थे. दैट वुड बी द ड्राफ्ट ऑफ द शिप व्हेन द शिप गोज टू सी वाटर. करेक्ट बेटा? Yes, sir. अच्छा, अगर हमारे पास पर्टिकुलर्स नहीं होते तो हम क्या करते थे? हम डॉक वाटर अलाउंस निकालते थे. राइट बेटा? डॉक वाटर अलाउंस कैसे निकालते थे? पहले फ्रेश वाटर अलाउंस निकालते थे. फ्रेश वाटर अलाउंस का फॉर्मूला हमने सिम्पसन्स रूल के टाइम भी रिवाइज किया था, W/40 TPC इन सेंटीमीटर्स. और फिर उसको हम यूनिटरी मेथड से जितनी हमारी डेंसिटी चेंज होती थी उससे हम डॉक वाटर अलाउंस निकाल लेते थे. व्हाटएवर आई हैव सेड, इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन लेट मी नो बेटा. ओके. अब ये जो तो अब तक हमने क्या किया था सेकंड वेट्स में, जब भी शिप एक डेंसिटी से दूसरे में जाता था तो हम सिर्फ राइज और सिंकेज की बात लगा के खत्म कर देते थे. हमने चेंज ऑफ ड्राफ्ट विद द चेंज ऑफ ट्रिम वाज नेवर कंसीडर्ड. ओके, because though it is not much but technically it happens. So now since you are in a higher grade, so that aspect also needs to be understood. Now we can have two situations as far as questions are concerned. One is we may have a question based on ship's particulars, that is in for exam purposes MV in ship, or it could be based on fixed particular pattern. That means particulars of the ship are given and they remain unchanged and then you have to solve the question. तो आपने वीडियो देखे होंगे, वही चीजें मैं आपको दोबारा इन स्लाइड्स के थ्रू रिपीट करूंगा. I know about 37 views have been there on the videos. So if किसी ने 2 बार भी देखा होगा, so if not all of you, I'm sure about 20-22 people would have definitely seen the video. तो अब ये बताना मुझे, जहां भी तुम्हें प्रॉब्लम हो मुझे आप रोक के पूछ लेना बेटा. And now when a vessel is afloat, the force of buoyancy is equal to the displacement of the ship and the two are in equilibrium. And how do we get this displacement or buoyancy? It is the volume of buoyancy into density of the water. And what is volume of buoyancy? For an intact vessel, volume of buoyancy is equal to underwater volume. As per above formula, when the vessel with the same displacement enters water of different density, the volume of buoyancy will change. Yes or no? ड्राफ्ट चेंज हो रहा है तो अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज होएगी ना. Yes, sir. और अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज होएगी तो एक तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, कम ज्यादा हो गई डिपेंडिंग ऑन राइज और सिंकेज. दूसरा जब वॉल्यूम चेंज होगी तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी. यस और नो? यस यस सर. ओके, सो ये दोनों के दोनों फैक्टर्स, value of the volume changing and its shape also undergoing a change, would it result in a shift of center of buoyancy of the ship? Yes or no? Yes sir, if underwater volume will change, there will be shift in center of Shift buoyancy. in center of buoyancy. ठीक है. ट्रिम में सेंटर ऑफ buoyancy और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कौन सा एस्पेक्ट यूज होता है बेटा? वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? Longitudinal sir. Longitudinal. So we will only discuss about the longitudinal aspect. So जब मेरा B शिफ्ट होगा तो हो सकता है वो longitudinally भी आगे शिफ्ट हो जाए या पीछे शिफ्ट हो जाए थोड़ा बहुत. करेक्ट बेटा? Yes sir. और जैसे ही वो आगे पीछे शिफ्ट होगा तो वो G से उसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से LCG से उसका डिफरेंस चेंज हो जाएगा. जैसे उसका G से डिफरेंस चेंज होगा तो would there be a change in trim? Yes or no? Because trimming lever is longitudinal separation between B and G. Correct बेटा? Yes sir. B और G का longitudinal separation is the trimming lever. जब भी आप कहते हो ना LCB difference LCG या BG, that BG या LCB difference LCG is the trimming lever. And this trimming lever when multiplied by the displacement of the ship W becomes the trimming moment. And this trimming moment when divided by the MCTC of the vessel will give you the trim of the ship. Correct beta?
सर ये दोबारा समझाने एक बारी, ट्रिमिंग लीवर क्या सर? लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जी। आप बताओ बेटे, आपको मैंने तो बता दिया, लेकिन रटने की बात नहीं। आप बताओ ट्रिमिंग लीवर क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट, हाउ द वेसल ट्रिम्स बेटा? सर वेट ऑफ द शिप है सर, मल्टीप्लाइड बाय द ट्रिमिंग लीवर। Trimming lever, and trimming lever is what is as per you trimming lever, not based on what I said. I don't want जो तुम्हारे हिसाब से ट्रिमिंग लेवर क्या है फिर? सर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बुoyancy एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Why बेटा? Yes, it is correct, but why? Tell me. सर बिकॉज सर buoyancy अपवर्ड डायरेक्शन में। Very good. So a couple gets formed with Yes, sir. equal opposite vertical parallel forces acting, one acting upwards through B, other acting downwards through G. Correct बेटा? यस सर। तो ट्रिमिंग लीवर, अगर हमारा शिप में अगर कोई भी वेट शिफ्ट नहीं हुआ है तो क्या एलसीजी चेंज होगा, हाँ या ना? नहीं सर, एलसीजी विल नॉट चेंज सर, बिकॉज Okay. डिपेंड ऑन द वेट ओनली। And B is the geometric center of underwater volume for an intact ship. Otherwise, technically, it is geometric center of the volume of buoyancy, right? यस सर। तो अगर अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज, अच्छा, जब जहाज बिना डिस्प्लेसमेंट चेंज किए एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में जाएगा तो क्या अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज होगी या नहीं? सर बिल्कुल होएगी सर। यस सर, हो गई सर। अगर वॉल्यूम चेंज होएगी तो एलसी भी चेंज हो सकता है ना? यस सर, हो सकता है सर। मोस्टली होता ही है, कभी तुक्के से ना हो अलग बात है, बट मोस्टली चेंज होगा एलसीबी। करेक्ट? यस सर। तो एलसीजी तो चेंज हुआ नहीं, एलसीबी चेंज हो गया, तो क्या ट्रिमिंग लीवर चेंज होगा या नहीं? सर होएगा सर। और अगर ट्रिमिंग लीवर चेंज होगा तो ट्रिमिंग मोमेंट चेंज होगा, यस सर। ट्रिमिंग मोमेंट चेंज होगा तो ट्रिम चेंज होगा, यस सर। and that is the theory behind change of trim with change of density. Does that answer everybody's question now? यस सर। Guys, class, have you understood why the trim changes when there is a change in density? Yes, sir. सोचो Yes, एक बार sir. रिकॉल कर लो जो मैंने स्टेप्स बोले। कुछ पूछना पूछो फटाफट। सर इसमें एक ये था कि जैसे अभी तक हम सेंटर ऑफ रोटेशन से लेते थे जो भी हमने न्यूमेरिकल्स बेटा वो सिंगल वेट की बात करते, that also gives the trimming moment caused by a single operation, right? यस सर, बट सर इट इज अबाउट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, उसमें हम डिस्टेंस भी टेक फ्रॉम। बेटा सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के अबाउट तो इंक्लिनेशन होगा। ओके ओके सर। सेंटर ऑफ इंक्लिनेशन के अबाउट तो, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के अबाउट तो जो ट्रिम होगा वो दैट इंक्लिनेशन ऑफ द वेसल, लॉन्गिट्यूडनल इंक्लिनेशन वुड बी अबाउट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, राइट? सेंटर ऑफ फ्लोटेशन विल एक्ट एज द फल्क्रम, राइट? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है ना? लेकिन व्हाट इज कॉजिंग द मूवमेंट फॉर द वेसल टू, अगर मैं ये बताओ एलसीबी और एलसीजी दोनों बराबर कर दूं, ठीक है? यस सर। तो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा। यस सर। तो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन कहीं भी हो, व्हाट विल कॉज द वेसल टू ट्रिम? देयर इज नथिंग व्हिच विल कॉज द वेसल टू ट्रिम। यस सर। भाई सेंटर ऑफ फ्लोटेशन कहीं भी हो मेरा, ठीक है? अगर मेरे एलसीबी और एलसीजी बराबर हो गए तो ट्रिम, क्या चीज ट्रिम करेगी जहाज को फिर? सो लीवर तो खत्म हो जाएगा देन, तो इट विल बी अपराइट ओनली। ओवरऑल ट्रिमिंग लीवर खत्म हो गया ना बेटा? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान ले तेरे जहाज के टोटल वेट्स को मैं 20 वेट्स में आइडेंटिफाई कर लूं, तो हर वेट का ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। यस सर। ठीक है, हर वेट का ट्रिमिंग मोमेंट होगा, वो हर वेट का जो ट्रिमिंग मोमेंट होगा वो W1 into D1 होगा। D1 will be the distance of GC of that weight from the center of flotation, right? फ्लोटेशन, यस सर। कुछ ट्रिमिंग मोमेंट्स बाय हेड होंगे, कुछ ट्रिमिंग मोमेंट बाय स्टर्न होंगे। हाँ जी। और ये सारे के सारे अलजेब्राइक सम जीरो हो जाएगा जब आपका एलसीबी और एलसीजी दोनों बराबर है। तो ओके सर, समझ में आ गया? हाँ जी सर। एनी मोर क्वेश्चंस? अगर मैं तुमसे ओरल से पूछूं व्हाई डज अ वेसल ट्रिम, व्हाई देयर इज अ चेंज इन ट्रिम ऑफ द शिप व्हेन शी गोज फ्रॉम वाटर ऑफ वन डेंसिटी टू अनदर, तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन देन? ओरल्स में हो या रिटन में हो? ओके,
ओके Sir- दिस लीड्स, हाँ बोलो। सर अगर शिप अपराइट है सर और कोई ट्रिम वगैरह नहीं है सर, एक मिनट, और अपर जो जो ट्रिम नहीं होती उसको इवन कील, इवन कील बोलते हैं। इवन कील है सर, हाँ सर डेंसिटी चेंज हो रही है सर, हाँ तो सर बी और जी है वो तो वर्टिकली एक दूसरे के नीचे रहेंगे अगर अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज भी रहेगी, क्योंकि शिप इज एट क्यों? इवन। ओके एक मिनट, शिप इवन कील क्यों होगा? जब जहां मान लो शिप तुम कह रहे हो सी वाटर में इस टाइम, ठीक है, यस सर। मान लो सी वाटर में उसका ड्राफ्ट 6 मीटर है हाँ जी। और वो इवन कील है, हाँ जी। इसका मतलब क्या है? जब 6 मीटर ड्राफ्ट पे सी वाटर में पड़ा है तो एलसीजी और एलसीबी बराबर है। बराबर है सर, ऊपर नीचे हैं दोनों। अब ये फ्रेश वाटर में जाता है, हाँ जी, 7 ऊपर मीटर। नीचे। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऊपर नीचे, आई एम इंटरेस्टेड इन लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन। ओके ठीक है ना, कौन ऊपर कौन नीचे, दैट विल बी सेपरेट इशू, दैट विल बी इन द स्टैटिक स्टेबिलिटी, राइट? ओके सर। सो लेट्स टॉक ऑफ ओनली द लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी राइट नाउ। ठीक है सर। ओके, नाउ ये जो दोनों के दोनों ऊपर वो एलसीबी एलसीजी बराबर है 6 मीटर पे। हाँ अब जी ये सर। जहाज मान लो फ्रेश वाटर में जाता है, ओके सर। तो मान अब इसका पहले तो तुम बताओ अपने हिसाब से, इसका ड्राफ्ट बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा? हाई ड्राफ्ट, ड्राफ्ट तो बढ़ेगा सर अगर ओके फ्रेश लेट अस से नाउ द ड्राफ्ट बिकम 6.2। ओके सर। अब 6.2 पे इसका एलसीजी सेम होगा या नहीं? अब ध्यान से बोलना, सोच हम। एलसीजी सेम रहेगा सर। ओके क्यों सेम रहेगा? वेरी गुड, सेम रहेगा, क्यों रहेगा सेम? सर क्योंकि कोई वेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज हुई ना सर। वेरी गुड, शाबाश। अब 6 मीटर पे और 6.2 पे, हाँ जी इज इट नेसेसरी दैट एलसीबी रिमेन सेम, यस और नो? सर, एलसीबी भी चेंज होएगा सर। बी नहीं चेंज, एलसीबी ही चेंज होगा। होएगा ही सर, क्योंकि अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हो रही है, वो ज्योमेट्रिक सेंटर। तो फिर ट्रिमिंग लीवर चेंज हो गया तो फिर इवन कील क्यों रहेगा जहाज? ठीक है सर। पहले ट्रिमिंग लीवर 0 था। हाँ जी। पहले मान लो एलसी सपोज 100 मीटर का जहाज था और मान लो एलसीजी उसका जो एलसीबी जो था मान लो उसका 51 मीटर्स पे था सी वाटर में, तो उसका एलसीजी भी 51 मीटर होगा क्योंकि तभी इवन कील था जहाज। हाँ जी सर। अब अगर फ्रेश वाटर में गया तो एलसीजी तो अभी भी 51 रह गया, हाँ जी सर। लेकिन तुम कह रहे हो एलसीबी चेंज हो जाएगा, या तो 51 से बढ़ जाएगा या 51 से कम हो जाएगा। जी सर। तो विल देयर आर ट्रिमिंग लीवर कॉज्ड और नॉट नाउ? यस सर। सो व्हाई विल द वेसल नाउ रिमेन इवन कील? सर बट सर अगर जैसे इवन कील है जहाज और तो अरे अंडर इवन कील तो सी वाटर में था ना। सर एक मिनट सर। हाँ, सर सी वाटर में था, फ्रेश वाटर में गया सर, ड्राफ्ट हाँ, ड्राफ्ट बढ़ गई बिकॉज अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज होगी सर। हम्म, बट जो सर शिफ्ट हुआ सर, ये जो बी शिफ्ट हुआ वो वर्टिकल शिफ्ट हुआ ना सर क्यों ऊपर। वर्टिकल शिफ्ट होगा? सर क्योंकि सर हमारे पास अच्छा ऊपर। अगर एक मिनट, जब हाँ जी। वॉल्यूम बढ़ी है हाँ जी तो सर। ये सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ी है क्या? बाकी सेम रही है क्या? उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती क्या? उसकी शेप सर चेंज अगर नहीं बॉक्स होती क्या? शेप वेसल हो, अरे यार, सर अगर बॉक्स शेप वेसल है तो तो यार तब बॉक्स तो शेप्ड सिर्फ वेसल, वर्टिकल। बॉक्स शेप्ड वेसल की बात अलग हो रही है, ठीक है? हाँ क्वेश्चन इज तुम लेकिन इन केस तो, ऑफ तो मैं बॉक्स शेप एक सर मिनट इसमें सिर्फ एक मिनट वर्टिकल ही होगा ना सर। एक मिनट, तुम मेरा हाँ। एक फिर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भूल गए हो। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बीच में बोली थी कि is the LCB likely to change, and which I and reinforce by saying though in most cases it will change, correct? यस सर। थोड़ी देर पहले मैंने सेंटेंस बोला, यूज किया था यस सर। कि यस is the LCB likely to change, and I myself said that yes, though it is most likely to change, will it change? तो उसका आंसर आया था yes. Even अगर एलसीबी चेंज नहीं हो रहा है एक गिवन सिनेरियो में तो ट्रिम चेंज नहीं होगी, लेकिन मोस्टली एक शिप शेप जब वेसल गया होगा उसका ड्राफ्ट। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, तुम एक मिनट माय डियर, तुम एमवी इनशिप के स्टेबिलिटी टेबल यूज किए हो ना? यस सर। तो वहां पे जरा देखो 6 और 6.2 मीटर का एलसीबी सेम है क्या? दैट विल आंसर योर क्वेश्चन, दैट विल मेक माय जॉब इजियर। सर अलग अलग है सर। तो एलसीबी चेंज होगा ना बेटा, हो सक मतलब मोस्ट केसेस में चेंज होगा ना?
होगा सर, और ट्रिमिंग मूवमेंट, क्योंकि वो शेप की वजह से होएगा ना सर वो बस। करेक्ट, तो फिर यही तो बात हो रही थी फिर। ठीक है, और ट्रिमिंग मूवमेंट वो लीवर आ जाएगा और ट्रिमिंग मूवमेंट बन जाएगी सर। करेक्ट, ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। The change in draft leads to change in volume of displacement. Now pay attention here what I just said. Both size and shape, thus leading to shift of B, the center of buoyancy, which is the geometric center of volume of displacement. The longitudinal shift of B changes the trimming lever, leading to change in trim. Any point you're not in agreement with, let me know. Change in trim by head or stern will depend upon whether B shifts forward or aft. G तो फिक्स्ड है, अगर LCB इंक्रीज हो गया तो क्या ट्रिम बाय हेड होगा और या बाय स्टर्न होगा? अगर LCB इंक्रीज हो गया तो बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी बाय स्टर्न। वेरी गुड। अगर By LCB कम होगा तो बाय हेड, LCG बढ़ गया, LCB बढ़ गया तो by stern. By stern if B shifts forward and by head if B shifts aft. बेटा any questions on this slide? फटाफट बोलो। नहीं सर। Okay. When a vessel goes from water of one density to another, the hydrostatic draft is affected only because of rise and sinkage. Is affected only because of rise or to another. Okay, ये why only because of this? ये क्या मैं गलत लग गया क्या? Okay, hydrostatic draft है, sorry, सही है, बिल्कुल सही है। Is this statement correct? When a vessel goes from water of one density to another, the hydrostatic draft is affected only because of rise and sinkage. Why, beta? Because change of trim does not change the hydrostatic draft, because the vessel, the center of flotation acts as the fulcrum, right? Yes, sir. When a vessel Yes, goes from water of one density to another, the hydrostatic draft only undergoes change because of rise and sinkage. Because अगर trim change होगा तो उसका effect hydrostatic draft पे नहीं आएगा, because center of flotation acts as the pivot for the vessel to trim, right? Correct? सर अभी हम पहले हम लोग अभी फ्रेश वाटर में थे फॉर एग्जांपल, अब हम चले गए वाटर में, हमारा अंडर वाटर वॉल्यूम जो इफेक्ट होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अभी हमारा जो ड्राफ्ट था वो इंक्रीज होगा, कितना होगा पर होगा, इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड और आफ्ट। करेक्ट, ठीक है। अब इससे हम LCB पे क्या पता लगाएंगे कि LCB आगे जाएगा या पीछे जाएगा? इतने इंफॉर्मेशन से हमें अगर पर्टिकुलर्स आपके पास है तो पर्टिकुलर से पता चल जाएगा, और नहीं तो अभी इसी में आ जाएगा। और काश तूने कल वीडियो देखा होता तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता। ओके, ठीक है। अगर काश तूने कल आधा घंटा निकाल लिया होता जिंदगी का तो आज क्लास तू ले रहा होता मेरी जगह। सर आगे से कर लिया करूंगा। हाँ तो बस अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मान लिया करो उसके पीछे 25 साल का टीचिंग है बेटा। करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, so hydrostatic draft will only be affected because of rise and sinkage, but the draft elsewhere, that means forward and aft draft included, they will be affected because of both rise and sinkage as well as because of change in trim. बोलो भाई यहाँ पे क्या पूछना क्वेश्चन? सर अगर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट चेंज हुई सर, सर अपना जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट अपना सेंटर ऑफ फ्लोटेशन पे होती है सर, जो पिवट पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर हमारी अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हुई तो सर हमारा सर ये सेंटर ऑफ फ्लोटेशन भी चेंज हो गया ना, क्योंकि सर वाटर प्लेन एरिया भी बिल्कुल होगा। मोस्ट केसेस में होगा, कभी तुक्के से ना हो। यस, तो सर हमारी ड्राफ्ट चेंज हो जाएगी तो सर फिर हाँ तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होनी चाहिए सर फिर ऐसे तो।
क्योंकि हमारी जो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है सर वो चेंज होगी। बेटा और हम कौन सा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं? सर चेंज ऑफ ट्रिम सर। नहीं क्या सिनेरियो? वेसल गोइंग फ्रॉम वाटर ऑफ वन डेंसिटी टू अनदर, राइट? हाँ जी सर। सो इन दिस आर वी आल्सो चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होएगी सर, नॉर्मल है बिकॉज़ अंडर वाटर वॉल्यूम वो डेंसिटी तो चेंज होगी। यू जस्ट सेड ना कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। डिस्प्लेसमेंट सर- तो क्यों चेंज होगी जब वेट लोड ही डिस्चार्ज नहीं किया तो? नहीं करा सर बट हाँ। ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट की वजह से बोल रहा हूँ सर मैं। सर अगर ड्राफ्ट चेंज हो जाएगी सर, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन चेंज हो गया सर हमारा, तो हमारी हाइड्रोस्टैटिक अरे ड्राफ्ट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, मुझे ये बता दो डिस्प्लेसमेंट क्यों चेंज होगी? सर, वेट नहीं। लोड की है। हाँ नहीं करा सर, बट जो हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स है सर हमारे, हाँ। सर वो हमारी हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के हिसाब से दे रखे हैं सर। तो और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट चेंज हो रही है ना सर। हाँ तो होने दो फिर। बट ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कौन से डेंसिटी में हुआ? 1.0 Suppose let's say the ship has gone from sea water to fresh water. यस सर। ठीक है, सी वाटर में हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 5 मीटर था, हाँ जी। फ्रेश वाटर में हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 5.1 मीटर हो गया। यस सर। तो वो जो 5.1 मीटर पे फ्रेश वाटर में है, हाँ should जी। that displacement be equal to displacement of the ship at 5 meters in sea water? यस सर। फिर सर बट आपने एक पॉइंट बोला था ना सर अभी थोड़ी देर पहले के, क्या बोला था बेटा? सर कुछ बोला था सर आपने कि ट्रिम वोट इफेक्ट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। यस ओ यार, जब क्योंकि ट्रिम वो- होता है तो जहाज किस पॉइंट के अबाउट इंक्लाइन होता है? सर सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। which point acts as fulcrum? सर सेंटर ऑफ फ्लोटेशन सर, जहाँ तो से pivot- जब मैंने तुमने वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट वाला वीडियो देखा वो तो सर, उसमें फल्क्रम जो है सी 100 का, क्या उसका चाहे प्लैंक हॉरिजॉन्टल हो या प्लैंक इंक्लाइंड हो, क्या फल्क्रम का डिस्टेंस ग्राउंड से चेंज हो रहा है क्या? जो पार्क में सी 100 होता है उसमें नहीं सर। तो उसका नहीं होता ना, बिकॉज दैट पॉइंट सस्पेंशन इज एक्टिंग एज द फल्क्रम, राइट? यस सर। तो इसी तरह से अगर शिप का सेंटर ऑफ फ्लोटेशन इज एक्टिंग एज इट्स फल्क्रम, तो वहां पर जो उसका ड्राफ्ट है वो चेंज क्यों होगा? इसके लिए तू जरा स्टेबिलिटी का वीडियो नंबर 2 देख लेना आज शाम को, ठीक है सर। ठीक है? जी। और अभी भी वो फ्री है, उसको देख लो, हाँ जी हाँ जी। ठीक है? तो जो फ्री है वो तो देख ले भाई, जी सर। ठीक है? Okay, so at other points, which includes the forward and aft perpendiculars, the draft will be affected both by rise and sinkage, like the hydrostatic draft, and additionally, it will also be affected by change in trim. Now, the change in trim depends upon whether the vessel is going from lower density to higher or higher to lower, and also अब ये दिस इज वेयर ये पूरे टॉपिक का सारा इंपॉर्टेंट इशू आ गया। इट ऑल्सो डिपेंड्स बिटवीन LCF वैल्यू एंड LCB वैल्यू, कौन सा कम है दोनों में से, कौन सा ज्यादा है। किसी शिप में किसी ड्राफ्ट पे LCF ज्यादा हो सकता है, किसी ड्राफ्ट पे LCB ज्यादा हो सकता है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कौन सा ज्यादा होना चाहिए, but it will depend upon कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। You rightly said in the class, somebody said a while back कि center of flotation is the geometric center of the water plane area, and we have already said in the class that center of buoyancy is the geometric center of volume of displacement, and in intact ship it is the geometric center of underwater volume. Let us take one case. Let us take case 1. ऐसे कई केस बन सकते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी, ये थ्योरी का क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं तुम्हारा अभी, एंड दीज क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम्स, सो डोंट टेल मी टुमारो कि हम कैसे करें। अगर पास पेपर देखोगे तो तुम्हारा सेक्शन बी में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन बी में क्वेश्चन मिलेगा कई बार, और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये थ्योरी में भी आता है टॉपिक। So be prepared. Okay.
Let us take one example. We are going to understand it through definite assumed case scenarios. So we'll just take definite scenarios and see how does it happen. So we just said it depends on two things. One is whether vessel is going from lower density to higher density or higher density to lower density. So we have assumed that in this case, the vessel is going from higher to lower density. Second is, what was the second point, beta? Last slide ka last point. It depends on which LCF one is greater. Yeah, LCB. which one is greater between the two, LCB and LCF, right? So we are assuming that LCF is greater than LCB. अगर ये scenario होगा, तो will my vessel change trim by head or the trim cost rather, because the final trim will depend on the initial trim and the trim cost. But here we are talking of only the trim cost, not the final trim. So will the trim cost be by head or stern is what we are going to learn through this exact case which we have taken. Okay, here is the ship. She is floating at waterline W1L1, static equilibrium. If the vessel is at static equilibrium, beta, so B and G are in vertical line, yes or no? Yes, sir. And this water line is in higher density, so let us say in sea water. LCF, let me put on the laser pointer. Why have I put LCF here, beta? पहली बात तो बताओ, water line पे क्यों mark किया है F मैंने? Because it is the geometric center water of the plane area. Correct. Why it has been marked forward of B? Because the assumption is LCF is greater than LCB. Is that clear? Yes, sir. Now, if this water goes to lower density, will the hydrostatic draft increase or decrease? Increase. Very good. Increase, sir. Increase. Okay, very good. Now she goes to higher density, lower density. You said she'll experience sinkage, and now maybe she is floating at W2L2. What has happened to the volume of buoyancy? Has it increased or decreased? Increase. By small v, this green portion has additionally gone underwater, correct, beta? Correct, sir. Okay. ये center of buoyancy किसका था? This was the geometric center of this blue shaded underwater volume, correct beta? Correct, sir. लेकिन अब जो underwater volume है, that is this blue plus this green, right? Right, sir. So obviously, center of buoyancy will be shifted. Now whether it will shift forward or aft, देखिए ये जो rise और सिंकेज, या तो राइज हो या सिंकेज हो, इस केस में सिंकेज है बेटा, ये बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी है, बिकॉज डेंसिटी को ज्यादा तो चेंज होती नहीं. फ्रेश वाटर इज 1, सी वाटर इज 1.025. तो यस, सिंकेज राइज होता है, बट इट इज नॉट इन मीटर्स की 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर राइज और सिंकेज हो गया, नहीं. सो जो फ्रेश ये जो चेंज हुआ है सिंकेज, जो भी वैल्यू इसकी आए, 10 सेंटीमीटर आए, 15 सेंटीमीटर आए, 20 सेंटीमीटर आए, जो भी ये सिंकेज हुआ है, कितना है, 10, 20, 25 सेंटीमीटर, इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इसमें हम क्या एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर शिप के नहीं है. तो इफ हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स आर नॉट देयर, अगर हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर होते तो मैं क्या करता, ये जो W1L1 पे हाई ड्राफ्ट था उसका LCB ले लेता, W2L2 का LCB ले लेता, और दोनों LCBs को कंपेयर कर लेता, मुझे पता चल जाता है LCB आगे शिफ्ट हुआ है या पीछे शिफ्ट हुआ है, देन इट इज मच सिंपलर, करेक्ट? Correct, sir. But when I do not have the access to hydrostatic particulars for that question, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये, अदर देन एज्यूमिंग कि ये जो सिंकेज हुआ है, या किसी केस में राइज होता, इस केस में सिंकेज जो हुआ है, ये इस लिमिटेड सिंकेज में W1L1 और W2L2 के बीच में वाटर प्लेन एरियाज आर आइडेंटिकल. I have to make this assumption that between W1L1 and W2L2,
the water planes are identical. Have you understood what I said? Yes. तो बेटा ये जो स्मॉल Hello? b, हाँ जी, हाँ बोलो. सर नहीं बेटा, I can't hear you. I know you're trying to say something, but I'm not able to hear you. सर अभी आई है बस. हाँ भाई ये बोलो. सर एक बार दोबारा बता दो, मेरा नेट ही उड़ गया था एक सेकंड को बीच में, वाईफाई उड़ गया था. नहीं तो कहाँ तक थे तुम मेरे साथ? आपने बोला था कि जो हमारे पास हाइड्रोसेट पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं है, तो ये 10-15 जो सीएम जो इंक्रीज हुआ है, इसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे? हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो वाटर प्लेन एरियाज हैं between W1L1 and W2L2, those water plane areas are identical. ओके, इंस्टेड ऑफ कि वो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, उस बात से फिर हमें मतलब नहीं है, वो हम आइडेंटिकल लेके खाली उसको. तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं कि जो मेरे वाटर प्लेन एरिया की शेप और साइज W1L1 पे है, वही मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वाटर प्लेन एरिया का शेप और साइज W2L2 पे हो, और वही मेरा वाटर प्लेन एरिया का शेप और साइज किसी भी ड्राफ्ट में, इसके बीच में किसी भी ड्राफ्ट में वाटर प्लेन एरिया देखूं तो दोज वाटर प्लेन एरियाज आर आइडेंटिकल, राइट? ठीक है सर, ठीक है सर. क्लियर गाइस? तो ये बताओ, अगर ये वाटर प्लेन एरियाज आइडेंटिकल हो, मान लो ये वाटर प्लेन एरिया ए है, इसकी वैल्यू, और सिंकेज स्मॉल एस है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर अंडर दिस assumption? A into S. A into S, correct? A into S. करेक्ट, वेरी गुड. और सोचो ये सारे के सारे आइडेंटिकल, मैंने ये तुम्हारी सिम्पसन्स रूल के टाइम भी मैं बोर्ड पर दिखा रहा था तुम्हें. V का जो V का ज्योमेट्रिक सेंटर है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, कैन यू प्रेडिक्ट वेयर वुड इट बी? ओनली ग्रीन पोर्शन का अहेड ऑफ B. ओके, मोर स्पेसिफिकली वेयर? सर सेंटर फ्लोटेशन भी ऊपर. Yes, it will be here. मतलब LCB, जो LCB of this small volume B would be same as LCF. It will lie here. Why? Because जब ये पूरी वॉल्यूम सेम आइडेंटिकल वाटर प्लेन एरिया से एज्यूम कर ली, और हर वाटर प्लेन एरिया का ज्योमेट्रिक सेंटर F, उसके ऊपर वाले का यहाँ पर, उसके ऊपर वाले का यहाँ पर, उसके ऊपर वाले का यहाँ पर, तो ये पूरी वॉल्यूम का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा? यही होगा फिर. यस. पूरी वॉल्यूम Yes, sir. मतलब पूरी मतलब स्मॉल v, पूरी वॉल्यूम का मेरा मतलब है स्मॉल v, राइट? यस सर. Any questions on what I said, beta? नहीं सर. Okay. 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 अरे क्या कर दिया मैंने? यही तो थे ना. Okay. अब ये बताओ, जब आपके पास शिप हो, उसकी LCG आपको पता हो, और फिर आप एक वेट फॉरवर्ड में ऐड करो, तो शिप की LCG किस साइड मूव होगी? फॉरवर्ड. वेट आप, वेरी गुड, टुवर्ड्स द वेट. ओके, वॉल्यूम्स में भी सिमिलर बिहेवियर होता है. ये जो मेरी ब्लू अंडर वाटर वॉल्यूम थी, डायग्राम में इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पर है बेटा? ब्लू वाले का, नीचे ये ब्लू अंडर वाटर वॉल्यूम का, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां है? जी. बी. बी, कैपिटल बी. बी, सेंटर पॉइंट सी, राइट? यस. यस सर. मेरी ये वॉल्यूम V जो है स्मॉल वाली, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हमने अभी डिस्कस किया, यहां पर है, करेक्ट? यस सर. यस सर. इसका मतलब क्या हुआ? पहले मेरी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी ब्लू वाली, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर था यहाँ. अब मेरी और वॉल्यूम ऐड हो गई है. कितनी वॉल्यूम ऐड हुई है? स्मॉल v, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है यहाँ. तो अब ये बताओ, Yes, sir. ये b जो है, will it remain here? Would it shift this way? Would it shift this way? Would it shift this way? किस साइड कैसे शिफ्ट होगा ये? Towards the geometric center of Towards V. टुवर्ड्स बी का ज्योमेट्रिक है. Towards the depend- towards the geometric center of V, right बेटा? सर. यस सर. जब ये इधर शिफ्ट होगा तो longitudinally is it moving forward or aft?
forward sir. So that means B will end up shifting somewhere here, right? Yes sir. And if B shifts here, so will it Trim cause a बढ़ change in trim by stern or by head? By Stern. stern. So that means if the vessel goes from water of higher density to lower density and LCF is greater than LCB, the change in trim shall be by stern. सोचो इसको और बताओ. इस बात पे डेली बहस होती थी कप्तान और चीफ ऑफिसर की, डेली. अब तू फंडे दे देगा? अब तो मैं ही फंडे दूंगा और कौन देगा. अभी तुम्हें एक इंसिडेंट बताऊं. एक अपना कोई पुराना Yes. फेज 2 का स्टूडेंट रहा होगा. He was mate on a ship. The ship was in Cochin. Indian master. The ship was hogged. अब उसने बेचारे ने हॉग लगा के शिप को लोड कर लिया. ठीक है, या पता नहीं सैग थी, मतलब शिप वाज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन वाज देयर. अब मास्टर उसकी जान खाए जा रहा है एक दिन कि भाई ये तुम्हारा जहाज तुमने ये ओवरलोड कर दिया, तुमने अंडरलोड कर दिया, जो भी उनके डिस्प्यूट थी, जो भी कुछ था. दिस गाय कॉल्स अप अराउंड 8:39 in the evening, a couple of days back when I was in Delhi. सर ये कप्तान ने मेरी जान खा रखी है. मैंने कहा क्या हो गया? कहता सर ऐसे ऐसे. मैंने कहा ऐसा कर, तेरे को वीडियो का लिंक भेजता हूँ. इज द शिप ओवरलोडेड वाला वीडियो शायद तुमने देखा होगा. मैंने कहा किधर हो तुम? करता कोचीन में. मैंने कहा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो भेजता हूँ मास्टर को, ये वीडियो दिखा देना. उसके बाद उसका मैसेज आया, सर ऑल सॉर्टेड आउट, थैंक यू. तो बेटा ये होता है, हम लोग पता क्या होता है, बुक से पढ़ते हैं, एग्जाम पास हो जाते हैं, कुछ हमें समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है. Yes sir. ये तो बात है. हाँ, तो हम अपने तुक्के में रहते हैं कि भाई हमें जो है ना आया नहीं आया, जो भी कुछ हुआ हम उसके हिसाब से चलते रहते हैं, और देन वी जस्ट मेक मिस्टेक्स. अब तू खुद ही कह रहा है कि कप्तान चीफ इंजीनियर में बहस होती थी बिकॉज हर एक ने अपने कॉन्सेप्ट लगा के समझे थे. एग्जाम पास हो गया है, अब वो समझ में आया नहीं आया, नोबडी नोस. परंतु जहाज में बहस नहीं होनी चाहिए बिकॉज जहाज में आपके पास हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स है. आप देख लो साला एलसीबी आगे जा रहा है, पीछे जा रहा हो, तो एलसीबी की वैल्यूज एट द टू ड्राफ्ट्स विल स्पीक ना. Yes sir, correct. वहां पे तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए. Yes sir. तो सर नए जोश था, नए चीफमेट थे, तो वो कहते थे मैं तो अभी एग्जाम पास किया है, ये मुझे सब याद है, ऐसा ऐसा. कप्तान साहब ऐसे मुझे इतने साल कप्तान में हो गए, तुम मुझे क्या फंडे दोगे? बस यही चलता लेते थे. एनीवे सो देखो, जब थ्योरी में क्वेश्चन आता है ना, Yes sir. sometimes they'll give you this scenario कि higher to lower या lower to higher, LCF greater than LCB या LCF lesser than LCB. And then you have to answer the question whether the change in trim will be by head or by stern. You are not calculating because you don't have the data. Sometimes they just say how the trim changes when the ship goes from water of one density to another. फिर जो पहले दो स्लाइड में फंडे थे वो लिख के एक आधा एग्जांपल लेके उसको क्लोज आउट कर दो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव. Okay. ये देखो, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी इसका यहाँ आ गया स्मॉल v का बेटा. ठीक है, जो मैं समझा चुका हूँ तुम्हें. फिर क्या हुआ, ये जो b है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस स्मॉल b, it shifts to b1. When it shifts to b1, what happens? Through b1, force of buoyancy is acting upwards. Through g, weight is acting downwards. A trimming lever is caused because of change in density, which will cause a change in trim by stern. So that is the inference for case 1. ये तुम्हें explain वहाँ ऐसे करना पड़ेगा, समझ गए? सर इसमें जो नया जो अंडर वाटर वॉल्यूम है स्मॉल v, उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर ही क्यों आएगा सर? एक बार क्यों आप बताओ, अगर आप समझे हो तो कुछ. What as per you? We made an assumption. Okay, you made an assumption that the जो वाटर प्लेन एरिया है
they were identical. identical. And this V comprises of those water plane areas. V is Yes, yes. integration of those water plane areas. तो जब Yes, सारे sir. वाटर प्लेन एरियाज का ज्योमेट्रिक सेंटर इसी लाइन में होगा, इस लाइन में, तो इस वॉल्यूम का ज्योमेट्रिक सेंटर भी इसी लाइन में होगा, मिडवे. Okay, sir. Okay. Yes, sir. करेक्ट. Yes, sir. हाँ. ओके. सर हम्म. सर बट ये जो आपने दिखाया है सर, ये समझ में आ गया, बट सर ये एक तरह से ये है ना कि सर LCB इज ग्रेटर देन LCF, तभी तो ट्रिमिंग मूवमेंट वो लीवर बना और उसकी वजह से नहीं बेटा, ट्रिमिंग लीवर इज द सेपरेशन ऑफ B and G. हाँ जी, और उससे फिर ट्रिमिंग नहीं। मूवमेंट क्रिएट हुई जिसकी वजह से जो ट्रिम के टाइम जो ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट जो इवन कील पे है वही रहेगा, आगे के पीछे के ड्राफ्ट पे ट्रिम का चेंज भी आ जाएगा. यस सर. ट्रिमिंग लीवर तो ये बना ना बेटा, हाँ जी, दिस इज द ट्रिमिंग लीवर कॉज्ड, और इसी की वजह से ट्रिम हुई है सर. इसकी वजह से ट्रिम हुई है. लेकिन तो- जो इंक्लिनेशन होगा वो नए जो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है यहाँ पर W2L2 इसके अबाउट होगा. हाँ, ये इसके अबाउट पिवट होएगा जो ट्रिम होएगी सर. इसके अबाउट इंक्लिनेशन, हाँ ये फलक्रम की तरह एक्ट करेगा, लेकिन ट्रिम कितनी होगी वो तो ये ट्रिमिंग लीवर डिसाइड करेगा ना बेटे. यस सर, जितना बड़ा होगा सर उतनी ज्यादा ट्रिम हो जाएगी. नहीं, उतनी ट्रिम कॉज्ड होगी. Yes, sir, अब उतनी- इनिशियल ट्रिम भी कुछ हो सकते हैं ना, सो वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रिम कॉज्ड ओनली. तो सर ये LCB होना चाहिए ना सर, LCB ग्रेटर देन LCG. अरे यार, LCF क्यों? LCF के अराउंड तो सर LCF ग्रेटर देन LCB मतलब मैंने F आगे लगाया था, B पीछे लगाया था. हाँ जी वो भी सर, बट ट्रिम तो सर इसके अगेंस्ट क्रिएट हुई है ना सर, अपना जो ट्रिमिंग लीवर बिटवीन B and G. अरे तो सिनेरियो, अगर सिनेरियो ये होगा तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट भाई. ठीक है सर. ये कंडीशन बेटा, अगर ये LCF B से कम होता तो ये स्मॉल b है वो इधर आ जाएगा ना बच्चे, फिर B किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा. हाँ जी, और फिर अपोजिट हो जाएगी. तो इट विल डिपेंड अपॉन ना कि तुम्हारे उस जहाज का LCF जो है LCB से ज्यादा है या कम है. ठीक है सर. नहीं समझ में आ गया, नहीं आया वैसे कह रहा जबरदस्ती, तेरी आवाज नहीं लग रही कि समझने वाली. नहीं आ गया सर. ओके, सो ट्रिम चेंजेस बाय स्टर्न. ओके, केस 2 इसमें बताओ. केस 2 ड्रॉ करके देखो, इज इट कमिंग ट्रिम चेंज बाय हेड, यस और नो, करके देखो. ड्रॉ करके देखो जहाज, and tell me whether you are convinced, is it change in trim by head or no. Vessel going from high to low density and LCB is greater than LCF, जो अभी तुम कह रहे थे, जो मेरे से पूछ रहा था. ये सर बाय हेड होगा. करेक्ट. Correct, sir. Anybody who's not able to understand? अगर LCF कम होगा, बाकी सारा सिनेरियो पहले वाला ही होगा. अगर LCF कम होगा तो ये स्मॉल b जो है वो यहाँ कहीं हो जाएगा, स्मॉल b इधर होगा तो ये b जो है इधर शिफ्ट होगा, तो B1 पीछे आ जाएगा, G यहीं रहेगा. दैट विल कॉज द शिप टू ट्रिम बाय हेड. करेक्ट बेटा. इस सेकंड सिनेरियो में, केस 2 में ट्रिम बाय हेड, एवरीबॉडी एग्रीज. Yes, sir. ओके, थर्ड केस ड्रॉ करो और बताओ बाय हेड या बाय स्टर्न. By head, sir. आई डोंट नो, बाय हेड. वन आंसर, सोच के बोलना. जब लोअर टू हायर जाती है तो जहाज बाहर निकलता है. इट इज लाइक डिस्चार्जिंग ऑफ वेट. इतनी जल्दी मत बोला करो, मुझे नहीं पता, हो सकता सही भी हो. बोलो भाई. बाय हेड होगा सर. By head. बाय हेड सर. माय आंसर इज आल्सो बाय हेड. आई डोंट हैव द डायग्राम्स, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे को प्रैक्टिस के लिए डाले हुए थे. इसमें क्या होगा, द बी विल शिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. करेक्ट बेटा. Correct, sir. बी विल शिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे जब वेट डिस्चार्ज करते हो तो जी शिफ्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन
along the line joining the two geometric centers, right? Two centers of gravity, right? सर सारे केसेस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो नए वाले वॉल्यूम की ऐड हुई है वो एलसीएफ के ऊपर ही एकदम, वो तो हमारे को करनी पड़ेगी। उसके अलावा तुम कैसे सॉल्व करोगे? वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि राइज और सिंकेज कम ही होता है ना, थोड़ा होता है तो ज्यादा चेंज नहीं होगा वाटर प्लेन एरिया, करेक्ट? ये पर वही है कि बहुत कम उसके लिए, अगर बहुत ज्यादा होगा तो सर बहुत ज्यादा डिफरेंस होएगा। ज्यादा होगा नहीं ना बेटा। ठीक है सर, 8 से 10 सेंटीमीटर ही रहता है सर नॉर्मली। लेकिन जहाज में तो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स है, तो वहां तो एलसीबी विल स्पीक ना डायरेक्टली कि एलसीबी पहले वाले एलसीबी से कम था या ज्यादा था, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जी सर। ओके, द लास्ट कॉम्बिनेशन करके देखो इसको। बाय स्टर्न होगा सर इसमें। ओके, बाय टर्न। सर ये थर्ड और फोर्थ केस में प्रॉब्लम आ रही है। मैं बना रहा हूँ डायग्राम लगातार, मेरा बाय मतलब ट्रिम बाय स्टर्न आ रहा है। ओके, पहले बता, एक मिनट, एक बात मैं बताता हूँ। जहाज की साइड एलिवेशन बनाओ। ये सर बनाया। W1 L1 लगा दो। मैं केस 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, किसकी बात करनी है? 3 और 4। 3 में बता दो तो 4 अपने पास आएगा। 3 में आ जाओ। यस सर। W1 L1 is in lower density, okay? Okay. If she goes to higher density, draft कम होगा, ज्यादा होगा? अच्छा, ओके। बिफोर W1 L1 पे इसका जो अंडर वाटर वॉल्यूम है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर B लगाओ जहां तुम्हें लगता हो, उसके ऊपर कहीं भी G लगा दो, और सेंटर ऑफ फ्लोटेशन इज अहेड ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज LCF इज ग्रेटर। तो जहां B लगाया है वाटर लाइन पे, उसके कहीं फॉरवर्ड में LCF लगा दो। लगाओ पहले। सर B के ऊपर नीचे G आएगा ना? यस, एग्जैक्टली करेक्ट। और B ऊपर आएगा नीचे आएगा G, उससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो स्टैटिक जहाज में यूजुअली ऊपर आएगा, अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के चांस हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, तुम ऊपर लगा लो। उसका लॉन्गिट्यूडल स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक। ओके, मैंने B लगा दिया वाटर लाइन पे। कोई नहीं, कैपिटल B वाटर लाइन पे नहीं लगता भाई। फ्लोटेशन B तो नीचे आएगा। F लगा दिया, F वाटर लाइन पे लगा दिया। और तुम्हारी डायग्राम में LCB और LCF में से बड़ा कौन आ रहा है तुम्हारी डायग्राम में? अभी हमारा सिनेरियो इज LCF इज ग्रेटर देन LCB, तो उसके हिसाब से LCF मार्क करो ना, F मार्क करो। नहीं हो रहा सर ये वाला। क्या नहीं हो रहा? G अरे G को तूने B और G लगा दिए। यस सर। ठीक है, अब what is LCB? It is the distance from after perpendicular to center of buoyancy. यस सर। और हमारे केस में अगर LCF बड़ा होना है तो F जो है, तो फिर जब राइज कर गया तो F। अरे राइज नीचे वाली अरे राइज नहीं, पहले W1 L1 पे ही बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। We are talking at W1 L1 only. ओके, दोबारा बना डायग्राम जो मैं बोल रहा हूँ, स्टेप इसको काट दे। साइड एलिवेशन बनाओ, साइड एलिवेशन बनाओ, W1 L1 बनाओ। W1 L1 नहीं दिया। ठीक है, ओके। इस जो अंडर वाटर वॉल्यूम है इसका ज्योमेट्रिक सेंटर B मार्क करो। ओके सर, मार्क कर दिया, B मार्क कर दिया। इस B के ऊपर कहीं भी वर्टिकली अबव इसके G मार्क कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। ओके, G मार्क कर दिया। अब क्योंकि LCF LCB से बड़ा है तो विल F be forward of B और aft of B? Forward of B. And where would it be? On the water line. On the water। तो मार्क करो W1 L1 पे forward of B F मार्क करो। F मार्क कर दिया। ठीक है, अब now she goes to
वाटर ऑफ हायर डेंसिटी, तो अब W2L2 जो है वो W1L1 के नीचे आएगी या ऊपर आएगी? नीचे एक लाइन मार्क कर दो W2L2। ओके अब इनके दोनों के बीच में W1L1 और W2L2 के बीच में जो वॉल्यूम है स्मॉल v, दिस इज द वॉल्यूम दैट हैज कम आउट ऑफ वाटर। यस सर। इस v का ज्योमेट्रिक सेंटर स्मॉल b मार्क करो, स्मॉल ब्रावो। ओके कहाँ होगा ये? सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर और v के जो राइज है उसके मिड पॉइंट पे, राइट? यस सर करेक्ट, वही मार्क किया है। बस वहाँ अगर आपने ये v डिस्चार्ज कर दी और v का ज्योमेट्रिक सेंटर स्मॉल ब्रावो पे था, तो शिप का सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ शिफ्ट होगा बताओ? पहले तो कैपिटल बी और स्मॉल बी को ज्वाइन कर लो स्ट्रेट लाइन से। यस सर। अब या तो बी शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स स्मॉल बी या अवे फ्रॉम स्मॉल बी। अब तुम्हारे केस में अब अवे होगा या टुवर्ड्स होगा? टुवर्ड्स होगा ना सर। क्यों होगा? लोडिंग है, ये एडिंग है। हैज द वॉल्यूम एडेड? नहीं अच्छा हाँ, डिक्रीज और डिस्चार्जिंग का कभी तो ट्यूब चली जाएगी, कोई बात नहीं। कब तक फ्लिकर करेगी ट्यूबलाइट, चिंता नहीं कर। अब ये पीछे जाएगा। ठीक, यस सर। अब पीछे जाएगा तो जी आगे हो गया, बी पीछे चला गया। विल द चेंज इन ट्रिम बी बाय हेड और स्टर्न? B1 के थ्रू, B1 के थ्रू ऊपर की तरफ एरो लगा दो, जी के थ्रू डाउनवर्ड एरो लगा दो। लग गया सर, लग गया। इज इट बाय हेड और स्टर्न? बाय हेड। दैट इज द आंसर। ओके सर, ठीक है सर। अगला ट्राई कर लो फटाफट। ओके। केस 4 सिचुएशन आगे आ गई है, फटाफट ट्राई करो। सर एक क्वेश्चन है सर। सर ये बार बार आ रखा है एमडी में। vessel arrives in port, density RD 1.027, draft 7 and 8 meters 4.5। बेटा सुन ले मेरी बात बेटा, वो न्यूमेरिकल पार्ट है। अभी हम इसका थ्योरी वाला, ये क्वेश्चन 5 में भी कहीं मिलेगा तुम्हें। ओके अभी हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसकी थ्योरी समझ रहे हैं, इसका प्रिंसिपल समझ रहे हैं, एंड ये इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में होता है यूजुअली ये। हाँ थ्योरी सर 5वें में आती है, 5th क्वेश्चन में आती है, लेकिन ये ऐसा ही आरडी चेंज वाला पहले भी आ रखा है ना उसमें। अरे तो वो न्यूमेरिकल है ना इसी का, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। हाँ, तभी तो न्यूमेरिकल करोगे बच्चे। ये खत्म नहीं हुआ क्या सर अभी? बाकी नहीं अभी खत्म नहीं हुआ ना। वही फिर मैं वही कहूंगा, वीडियो देखा होता तो आज क्वेश्चन नहीं करता इतना बड़ा। बेटा हाउ कैन द न्यूमेरिकल प्रीसीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट? फर्स्ट द कॉन्सेप्ट हैज टू सिंक इन ना, and this concept based question is also there, so it's not just waste of time, it's also to cover a theory question. Okay जी सर okay भाई। 4th में हो गया तेरा डाउट क्लियर बाय स्टर्न हीरो? यस सर हो गया। ओके वेरी गुड, फैंटास्टिक। टाइम क्या हुआ? मैं टाइम देख। मेरी क्लास कितने बजे तक है? 1:45 तक, ठीक है। 40। अब बेटा कमिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट, इसमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा। एक टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा जिसमें हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स तुम्हारे पास है, और ऐसे क्वेश्चन आपको शिप पे ही ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज एवरी टाइम एज अ ऑपरेटर यू विल हैव एक्सेस टू द हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स। ओके, द अदर वुड बी वेयर द पार्टिकुलर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड दे रिमेन फिक्स्ड। ओके, एंड वी हैव टू लर्न बोथ। As far as the first part is concerned, obviously एग्जाम में वो MV हिंशिप से ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि MV हिंशिप के particulars allowed है। So look at this question. So first let's look at this question. MV hinship arrives sea water anchorage in condition number 7. Particular है सबके पास या उठ के लेके आने एक बार? ले लिया। किसी को लाने ले आओ बेटा, फटाफट ले आओ। Let me know when I can start. अगर कोई जा रहा है तो टेबल छोड़ के।
अरे लोगों, भाई लोगों, मैंने मैसेज डाला था, वी हैव ओपन द बुकिंग्स फॉर ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस एट शेप, दोज ऑफ यू वांट टू डू विद अस, सो यू मे बुक फॉर phase 2 if you are planning to do, but that will apply only to the January batch because we have opened for the next month, 16th of May. 16th of May we are starting phase 2 at Shape Panchkula physical mode, and this booking is opened under Shape, so don't look under ARI. Shape में जाओगे, नीचे पंचकुला में नीचे में मिलेगी कॉम्पिटेंसी की बुकिंग्स, वहीं पे है ये. So when you book this time, you will be booking for Shape directly, so that there is no confusion कि physically कहाँ जाना है तुम्हें. Okay. So हाँ सर एक वैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछना था. हाँ बोल सर. जैसे अभी phase 2 में अगर मेरे को बुक करना, तो आप पंचकुला वाले में पढ़ाएंगे ना सर? शेप में बेटा जो अब जहाँ तुम बुक करोगे वहीं पढ़ोगे. दिल्ली में बुक आप करोगे. आप कहाँ पढ़ाओगे सर? मतलब मैं तो शेप में बैठा हूँ बेटा, मैंने कहाँ जाना. आई एम एट शेप ओनली. देखो मैं तुम्हें बता दूं, शेप की फैकल्टी, नॉट टू बेसिकली, सुनील बाबा इज विद मी, रैना इज विद मी, विग इज विद मी, एंड राजीव गुप्ता एंड धर्मानी. दिस इज द कोर टीम फॉर कॉम्पिटेंसी एट शेप. आई डोंट हैव टू से एनीथिंग मोर देन दैट. आई एम नॉट हियर टू बेसिकली सेल शेप. But believe me, before the COVID, we were always overbooked as far as competency was concerned. And that time we were charging 22,500 की फीस for phase 2. अभी तो मैं दिल्ली के साथ अलाइन कर रखी है, so I'm not changing it. But that is the past track record we have. And so बिंदास अगर तुम्हें आना है तो you're more than welcome. जो but I think comfort भी देखना अपना. Those who are from Delhi side don't unnecessarily venture that far. But अगर तुम्हें हॉस्टल में दिल्ली में रहना है, हॉस्टल में पंचकुला में रहना है, then Panchkula is 1,000 times better place to stay. Unless you have a home in Delhi, then it's a different issue. Anyway, MV Hinship arrives seawater anchorage in condition number 7 and berths at a berth in water of RD 1.002. Calculate her drafts on berthing. Also evaluate the change in trim if any. ये last part ना भी कहता तो भी question में change ही नहीं होना था. Okay. So बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे अगर MV हिंशिप के फाइनल ड्राफ्ट्स निकालने हैं तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए? फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन. फाइनल ड्राफ्ट्स फॉरवर्ड ड्राफ्ट निकालने हैं तो मुझे MV हिंशिप का क्या क्या चाहिएगा? दिस इज हाउ यू विल थिंक. विल आई नीड द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ऑफ द MV हिंशिप इन द फाइनल कंडीशन? यस और नो? फाइनल कंडीशन में जिस पानी में गया. यस सर. करेक्ट. बिसाइड एंड फाइनल. शाबाश, वेरी गुड. सो लिखो. तो दिस इज हाउ यू थिंक कि मुझे MV हिंशिप का फाइनल ड्राफ्ट, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट चाहिए, मुझे MV हिंशिप की फाइनल ट्रिम चाहिए. बेटा फाइनल ट्रिम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी बात कर रहे थे. फाइनल LCB डिफरेंस फाइनल LCG मल्टीप्लाइड बाय फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल MCTC. करेक्ट? यस सर. डज एवरीबॉडी एग्री? तो अब लिस्ट बना लो क्या क्या चीजें चाहिए. मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे फाइनल LCG चाहिए, मुझे फाइनल LCB चाहिए, और मुझे फाइनल MCTC चाहिए. और फिर इस ट्रिम को मैं TATF में स्प्लिट कर लूंगा तो मुझे फाइनल LCF भी चाहिए. करेक्ट बेटा? यस सर. ओके. अब शिप इज इन सी वाटर एट कंडीशन नंबर 7. सो गो टू कंडीशन नंबर 7. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप? Yeah, so from the stability booklet, the displacement is 18529.3. It's come on the screen also. What is the LCG of the ship in condition 7? Can you please look at the page and tell me? LCG है sir 72.40. 340. Okay, drafts, trim, LCG 72.340, right beta? Yes sir. And these drafts are also for condition number 7. This is the trim for yes, condition sir, number 7. Correct? Okay. 8.7. Okay. Now you tell me, beta, when she goes to water of RD 1.002, इनमें से कोई ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होगी? They will remain as such out there also. LCG चेंज नहीं होगी सर. Or what else? Displacement. तो अभी हमने लिस्ट बनाई थी क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है. मुझे RD डिस्प्लेसमेंट मिल गई 18529.3.
मुझे LCG मिल गई 72.340. करेक्ट, एम आई राइट बेटा? Yes, sir. Okay. Now what? Now the question becomes MV hinge ship displacing 18529.3 tons goes to dock water of RD 1.002. अब ये जो बाकी चीजें हैं, for this displacement in dock water, I have to find out these values. Which values? LCF, LCB, MCTC, hydrostatic draft. Correct बेटा? Yes, sir. Correct guys? सर एक बार लास्ट Yes, sir. लाइन दोबारा बोल देंगे सर? मैंने कहा अब क्या हो गया, मेरा MV hinge ship with a displacement of 18529.3 tons now goes to dock water of RD 1.002. Agreed? Yes, sir. वहाँ उसका हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल सकते हैं हम, निकालेंगे। यस सर। वहाँ उस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पे वहाँ पर LCB भी मिल जाएगा, वहाँ पर MCTC भी मिल जाएगा, वहाँ पर LCF भी मिल जाएगा, वो निकालेंगे, उससे फाइनल वैल्यूज निकाल के फाइनल ट्रिम निकाल के TATF में स्प्लिट करके हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में लगा देंगे। दोज विल बी द ड्राफ्ट्स। सो नाउ if I have to find the hydrostatic particulars of MV hinge ship in dock water when she is displacing 18529.3, especially to January batch, what should I do? Because you are going for exam, that's why especially to you. What do I do? Anybody? Okay, any batch? सर क्या सर आवाज I want the hydrostatic particulars of MV hinge ship for this much of displacement in dock water of density 1.002. What do I do? Sir, we will take out equivalent displacement in salt water. Equivalent then with water that displacement. Very good. Shabash. Yes. So we RD. Then we'll this, get the. This was condition number 7. Now at birth, where RD is 1.002. Only thing I know is this is the RD, this is the displacement, and this is the LCG in water of RD 1.002. Do you agree with this? Yes, sir. यस सर। अब इस अभी displacement equivalent इक्विवेलेंट निकाल- सी वाटर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, प्लीज निकालिए। 18954.6। Yes, sir. अब हमने जो अभी माइंड मैप बनाया था उसमें हमें क्या क्या पर्टिकुलर चाहिए? हमें हाई ड्राफ्ट चाहिए, हमें MCTC चाहिए, हमें LCB चाहिए और हमें LCF चाहिए। करेक्ट बेटा? We had just made the Yes, list of sir. what we need to calculate now, right? So अब Yes, sir. पहले हम क्या करेंगे? डेंसिटी टेबल्स में से किस डेंसिटी में मिलते हैं पर्टिकुलर्स? सी वाटर में, करेक्ट? Yes, sir. And we'll enter with which displacement? Equivalent sea water displacement, and we'll find out these 4 particulars. Can you please calculate them? Then I'll show the values. वन 18954.6 टन से एंटर करो, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालो, MCTC निकालो, LCB निकालो, LCF निकालो। ये क्यों निकालने हैं वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका बैकवर्ड वर्किंग करके कि हमें क्या क्या चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर इंटरपोलेटिंग देम। I am showing the values. You can keep interpolating one by one and keep matching them, and let me know once you are done. तो जो क्वेश्चन में था arrives sea water anchorage
condition 7 and birth set of birth in sea water of RD this. तो सर जो ये हमारे पास 18529.3 है डिस्प्लेसमेंट है सर। हाँ तो क्या डाउट क्या है, डाउट बोलो ना बेटा। हाँ सर आपने इक्विवेलेंट सी वाटर डिस्प्लेसमेंट निकाला है तो ये ऐसे नहीं होगा 18529.3 डिवाइड बाय 125 into 002। When that ship goes to dock water, when ship goes to dock water, ये वाली लाइन पढ़ो, ये क्या है लाइन? Any problems with this line which you are seeing on screen now? हाँ yes sir। So then what is my displacement? इसमें ये है But where in, Sir, ये in dock water? एक minute. Where is this displacement now? In dock water, right? dock water में sir। Because she has gone to berth now. Yes sir। Earlier this was the displacement in sea water when she was at anchorage, right? Right sir। Now she has gone to berth. Displacement has not changed. Correct sir। So this is the displacement now in dock water. Yes sir। तो अगर मैं 18529.3 का इक्विवेलेंट सी वाटर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? Okay, डॉक sir, वाटर okay। की डेंसिटी से। ठीक है ओके सर ओके बेटा तुम लोग ना थोड़े हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स वगैरह के फंडे वो बेसिक वीडियो देख के क्लियर कर लो, फंस जाओगे तुम लोग, बहुत कैजुअल ले रहे हो लाइफ को। सर ये LCB 72.301 आएगा सर। हाँ जी बेटा 72.301 सर। ओके 3 वो राउंडिंग ऑफ का ही पंगा होगा, थर्ड डेसिमल प्लेस में ना 0.1 की फर्क, कोई बात नहीं, कर लो। हाँ जी तुम 301 लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, वो राउंडिंग ऑफ का होगा, कोई इशू नहीं। मे बी आई मिस्ड आउट और समथिंग, इट्स क्वाइट पॉसिबल। सर बाकी सब तो सेम है सर। ओके वेरी गुड। हाँ बेटा guys can I move to the next step if you are okay with it? किसी ने एक दो भी इंटरपोलेट कर लिया हो तो कर लिया सारा कर लिया। ओके अब हमें क्या करना है? हमें सी वाटर में चाहिए क्या पर्टिकुलर? नहीं ना, हमें किस में चाहिए? डॉक वाटर में। तो नेक्स्ट लाइन में डेंसिटी डॉक वाटर और जो पर्टिकुलर चेंज होने चेंज करो, जो सेम रहने सेम करो, जरा करो फटाफट। Your displacement will get back to 18529.3. Your MCTC needs to be changed. Only thing, these are the only two particulars which will change. Draft, LCB and LCF will remain unchanged. सर MCTC बता दीजिए सर, कैसे करेंगे सर, हमें आइडिया। ओए सर मार्च वाले हैं सर। तो मार्च वाला है तो सेकंड वेट किया था, नहीं किया था? प्रीजी की थी, नहीं की थी? की थी सर। तो और वीडियो कौन देखेगा फिर? वीडियो देखनी है सर। तो देख लेना बेटा। ठीक है सर। देख ले यार, इतना बेटा इतने पीछे। और मैंने तुम्हें पहले बहुत पहले कहा था कि एमवी इनशिप के क्वेश्चन करने शुरू कर दो, तो कुछ भी नहीं किया है, इसका मतलब बैठा हुआ है। नहीं सर करे हैं सर, पर कुछ नहीं बेटा, चेंज नहीं, ये तो पहले क्वेश्चन से शुरू होती है यार पर्टिकुलर्स। तो पहले तो सर वो इतने के नहीं, वो अलग बात है कि तू कहे कि मैंने अभी तो मैं प्रीफेस पढ़ रहा था सर, क्योंकि क्वेश्चन किए होते तो दिस इज वेयर यू स्टार्ट विद। जी सर। ठीक है, तो अगर तू प्रीफेस पढ़ रहा और कैप्टन सुब्रमण्य, वो कैप्टन रिवारी और कैप्टन जोसेफ का फोटो देख रहा हो तो अलग बात है यार। बेटा 211.245 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सी वाटर मल्टीप्लाइड बाय 1.002। ठीक है सर। MCTC in sea water divided by density of sea water multiplied by density of dock water, right? And then you will get this 206.505. ठीक है भाई? जी सर। वहां ये एक्सप्लेन भी कर रखा है कि क्यों ये ऐसे होता है, वहां सारे फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करके किया हुआ है, बेटा देख लो एक बार प्लीज। तो बच्चों अभी ये देखो, हमारे पास शिप की डिस्प्लेसमेंट मिल गई ये वाली, हमारे पास LCG मिल गई, हमारे पास MCTC है, हाई ड्राफ्ट है, LCB है।
कैन वी फाइंड आउट द फाइनल ट्रिम? यस और नो? अब एक चीज ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हम ट्रिम कॉस्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं अब? फाइनल ट्रिम. फाइनल ट्रिम विल बी द रिजल्टेंट ऑफ इनिशियल ट्रिम and the trim cost, right beta? Right, sir. In this question what you are going to get is the final trim and not the trim cost. So ये वाले particulars use करेंगे जो मैंने box बनाया है, and I'm sure you'll agree with me that trim cost comes to 3.6 centimeters by head. और by head क्यों है वो लॉजिक भी ब्रैकेट में मैंने दे दिया ताकि तुम भी अगर पेपर में ऐसे लिख के आओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा. इसको देखो, कुछ पूछना है तो पूछो. डन डन डन. LCB difference LCG multiplied by displacement upon MCTC, and we get a trim final trim of 3.6 centimeters by head. अब आगे पीछे के ड्राफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 3.6 का TATF निकाल लेंगे. करेक्ट बेटा? करेक्ट सर. So TA comes to 1.8 centimeters, which is equal to 0.018 meters. Trim component forward comes to, दोनों बराबर बराबर ही आ गए हैं almost. Round off करके, it's not changing much. Am I right? Just check beta. If you round off to one decimal place in centimeters or third decimal place in meters, is this what we are getting? Yes, sir. Actually, the 0.01755 आ रहा है. तो 755 को राउंड ऑफ करेगा तो 8 हो जाएगा ना बेटा? 7. Yes, sir. Correct. 0.0. So हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी है फाइनल 8.960, उसमें TATF लगा देंगे. ट्रिम कॉस्ट अभी की क्या थी? बाय हेड या स्टर्न? आई हैव जस्ट फॉरगॉटन. क्या थी? बाय हेड सर. बाय हेड. बाय हेड. सो बाय हेड थी तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट कम हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, आफ्ट ड्राफ्ट डिक्रीज हो जाएगा. सो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. दैट गिव्स अस द ड्राफ्ट्स इन डॉक वाटर as 8.978 and 8.942. इस क्वेश्चन में एक पार्ट लास्ट था. what was the question? Last part of the question, let me just minimize it, नहीं तो पीछे जाना पड़ेगा सारा. Evaluate the change in trim if any. Evaluate the change in trim if any. So what do you think would be change in trim? What is the initial trim? 1.4 centimeters by stern, correct beta? Correct sir. And what is the final trim? 3.6 centimeters by head. By head. So what is the change in trim? 4 point add कर देंगे इनको. And will be by head or stern? By head. 5 cm. 5 centimeters by head is the trim caused because of change of density. Understood? Yes. Yes sir. 5 centimeters, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने. 5 centimeters is the change in trim caused because of, by head is the change in trim caused because of change in density. Understood beta? ये एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया. अगर एमवी इनशिप पे आएगा तो बेस पे. यस सर. ओके. अब जो दूसरा क्वेश्चन जैसा वो पढ़ रहा था, आप वीडियो भी देख लेना और कल इसको डिस्कस कर लेंगे. ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि आवर फ्रेंड वाज रीडिंग. आप वीडियो में इसको देख लेना और अगर वीडियो से तुम्हें समझ में आ जाएगा तो ठीक है, बढ़िया है.
नहीं तो मैं कल जो क्वेश्चन वो पढ़ रहे थे बेटा, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसको निकाल लेना. टुमारो विल गो ऑन द बोर्ड एंड विल सॉल्व दैट क्वेश्चन रादर देन सॉल्विंग दिस वन. दिस इज ऑलरेडी देयर इन द वीडियो, राइट? जी सर. Okay, so please watch this video, complete this if you have not seen, and this one numerical type which is left, I can take it tomorrow. We have already overshot, so I don't want to unnecessarily bother you. सर तो हाँ बोलो बेटा. एबिलिटी में हमें कौन सी बुक रेफर करनी है? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, व्हिच वन वी कैन रेफर? बेटा अब तो पहली बात तो उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 को मर्ज करके ऑपरेशनल मैनेजमेंट ले आए थे. वो बेसिकली आपको टॉपिक से मतलब है, एक तो जो सेकंड मेट तक किए थे वो सारे करने हैं बेटा. उसके बाद जो फेज 1 के ऐड हो रहे हैं वो आपको ऐड करने हैं. तो एज इनका ना मिक्सअप हो रखे हैं टॉपिक्स, ठीक है? वैसे तो तुम्हें बुक की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आई विल कीप सेंडिंग यू द एक्सरसाइजेज जो हम कर रहे हैं. जैसे सिम्पसन्स रूल की भेजी थी, ऐसे ही जो और करेंगे तो भेज देंगे. उसके बाद यू शुड बी प्रिपेयर टू, मेरे हिसाब से तो तुम जो माय एडवाइस टू मार्च एंड फरवरी बैच, बिकॉज जनवरी को तो अब एडवाइस से फायदा नहीं है, वो तो परे जा चुके इससे. तुम लोग को सबसे पहले तो अपनी एमवी हिंशिप करनी चाहिए और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लास में लाके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद फिर बात करेंगे आगे. एमवी हिंशिप में कम से कम 80-85 क्वेश्चन तक पहले अपनी फाउंडेशन को ठीक करो. वो ठीक हो जाएगी तो बाकी चीजें, छोटी मोटी चीजें ऐड ऑन इज नॉट अ वेरी बिग टास्क. और उसकी डाउट सॉल्विंग भी मेरे लिए आसान हो जाती है बेटा, ठीक है? तो तुम उसको कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई? सर एक डाउट था सर. जो हमने क्वेश्चन ड्राई डॉकिंग और ग्राउंडिंग के किए थे सर उसमें हमारा जैसे एक क्वेश्चन था, एक जहाज दूसरे डेंसिटी में जा रहा है सर ड्राई डॉकिंग के लिए सॉल्ट वाटर से, तो उसमें हमने ये वाला कंसीडर नहीं किया सर, चेंज इन ट्रिम सर. किसमें? जब मान लो सर सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर जा रहा है सर ड्राई डॉक सर, वाटर ड्राई डॉक में जा रहा है तो बेटा बेटा इसमें पूरे में कितनी ट्रिम चेंज हुई है? 5 सेंटीमीटर ना? हाँ सर. नहीं लेकिन मैं वो पी के हिसाब से मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ. मैं भी तुम्हें वही कह रहा हूँ कि इसमें 5 सेंटीमीटर ट्रिम चेंज हुई है. एंड ड्राई डॉकिंग में आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग कि वो हमें बिल्कुल प्रिसाइज रिस्पांस नहीं देते हैं, राइट? हाँ सर वो तो है, ठीक है. अब यूं तो अब सेकंड मेट से अब तक तुमने कभी अलाउ किया था चेंज ऑफ ट्रिम? नहीं किया था ना? हाँ नहीं किया सर, है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, एक तो जहां पे बिल्कुल ही टाइट हो, चाहे वो अंडर कील क्लियरेंस हो या कुछ और इश्यूज हो पोर्ट के, तो जहां पे ज्यादा क्रिटिकल होगा वहां पे दिस टॉपिक हैज टू बी टेकन इनटू, दिस पर्टिकुलर इशू हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, राइट? जब ड्राई डॉकिंग में पी मेरे को वैसे ही वैल्यू अप्रोक्सीमेट आनी है, ठीक है? हाँ जी. तो वो 5% में जानबूझ के उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसके बाद भी सेफ्टी मार्जिन लेके चलूंगा. व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. हमने वहां पे चेंज ऑफ ट्रिम नहीं लिया था और वो आज तक हमने सेकंड मेट में भी नहीं लिया था. हाँ जी. तो इसलिए वो नहीं लिया था बेटे, ठीक है? लेकिन अगर आप लेना चाहो आप ले सकते हो, बट उससे टाइम लग जाएगा. मुझे नहीं पता वेदर दिस विल टेक अस टुवर्ड्स एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी, क्योंकि जो मैं पहले प्रोसेस की इनएक्यूरेसी है वो किस तरफ एरर है मुझे खुद नहीं पता. ओके सर. एंड सर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर मान लो अगर हम लोडेड शिप को अगर ड्राई डॉकिंग कर रहे हैं सर, तब कंसीडर करेंगे ना कि तब तो छोटी छोटी चीज भी कंसीडर की? नहीं, बात वो नहीं है. बात ड्राई डॉकिंग में जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो क्या कर रहे हो तुम? बेसिकली पी तुम्हारा मुद्दा है ना, पी कैलकुलेट कर रहे हैं सर हम. पी का मुद्दा है ना, तो उसमें लोडेड हो या डिस्चार्ज हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? और पी भी आपको किस टाइम चाहिए? प्राइमरीली आपको क्रिटिकल इंस्टेंट पे चाहिए, है ना? तो उसमें लोडेड शिप हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका जो पी आना है दैट विल बी ड्रिवन बाय ट्रिम. हाँ जी सर. राइट. डिस्प्लेसमेंट तो उसमें कहीं नहीं आती ना बेटा? नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं आती. हाँ, तो जो विद चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर तुम कहो कि एमसीटीसी कितना चेंज होता है, तो एमसीटीसी चेंजेस एट इट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न. हाँ जी सर. तो ऐसा नहीं है कि लोडेड शिप में ही एकदम ट्रिम का इफेक्ट बिकम्स एक्सपोनेंशियल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. हाँ, so it has nothing to do with the loaded ship or ship in ballast which is docking. It is just because the results in any case are not absolutely accurate. So we don't tax ourselves by considering the change in trim
change in trim because of change in density when we are handling the dry docking question. Correct बेटा? ठीक है सर, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके बच्चे। वैसे तो जो अपनी शिप होती है ना बेटा, शिप में इतने प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज शिप के तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स होते हैं, तो वहां तो हम सीधा उसी वहां ड्राई डॉक की कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं, तो अपने आप वो चेंज इन डेंसिटी अपने आप अकाउंट फॉर हो जाती है। हाँ जी सर, जी ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है सर, एक दो क्वेश्चन कर रहा था तो कहीं देखा तो इसलिए पूछ। नहीं उधर जान पूछ के छोड़ देते हैं कोई, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी गोइंग टू मेक एनी फिनोमिनल डिफरेंस, राइट? ओके गाइस, वी कैन स्टॉप।